Ganguly is here. Rupa Ganguly, you all know, she is a member of Parliament of the Bharatiya Janata Party. She has been active on this particular issue from day one. She was the first to talk about CBI. She was the first to talk about the murder angle. She was the first to say that everything is not all right. She was the first to raise a question on the keys. And today again she is back asking a few more questions. I also have a question. Yeah, ma'am. She is here. I am connecting her. I also have a few questions for her. But first, all about the way things have been in last 28 days. She came on the platform about 2 weeks ago, and it has been about 2 weeks, and many things have happened. So what is her point of view? What she thinks 20 days after Sushant Singh death? Where is the case standing? And whether Sushant Singh Rajput will get justice or not. Whether we'll know exactly what happened on that day. What happened to Sushant Singh Rajput on the 14th morning. That's very extremely important to know, and that's exactly why I've invited her on this platform to come and speak to us. Getting connected. Yes, ma'am. Thank you so much, Rupa Ganguly. That's Rupa Ganguly for you. And this is the second time she's coming on this platform. With a lot of persuasion, I have been able to bring her here because ma'am, बहुत सारे fans लगातार पूछ रहे थे, why will she come? Why is she not coming? I said, wait. I could not assure her because there were a lot of things which were going in your mind. I was in constant touch with you, but I wanted to give you that time and space when you want to come. So today you have decided. Thank you so much. I leave it to you, whatever you want to say, and then I will come with my question. But first, all of what is the situation after 28 days of Sushant Singh Rajput death? 28 दिन हो गए मैम, 28 दिन, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अभी भी पता नहीं चला है कि आखिर क्या हुआ 14 तारीख 13 तारीख को रात को और 14 तारीख को सुबह. No one knows what happened to Sushant Singh Rajput. He is still a mystery. CBI demand, investigation demand is still on. Yes, ma'am. आप जो कह रहे थे वही डिस्कस. आपको मेरी आवाज? या मैम आ रही, अब आ रही. अच्छा, मुझे पता नहीं है, फ्रेम मुझे समझ में नहीं आ रहा. Is the frame okay? Can you hear me? Or yeah, it's perfect. It's perfect, ma'am. Okay. Yes, we can hear you loud and clear. Okay. So हमें एक चीज लग रहा है कि अलग अलग न्यूज पोर्टल में या टेलीविजन कुछ चैनल्स अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन सब टुकड़ों में खबर आ रही है. सारे खबर जो आ रही है वो अपडेटेड होके आ रही है. समझिए 15th को जो था वो, उसके बाद 4 दिन बाद कुछ अपडेट हुआ, उसके बाद सेम न्यूज कुछ अपडेट हुआ 4 लाइन जोड़ के. सो वैसे ही खास करके आ रहे हैं. संजय लीला बंसाली जी जो गए थे उसके बाद थोड़े से खबर आए, और मैं तो आप सबके जरिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, ईश्वरन को धन्यवाद देना चाहती हूँ. निशिकांत दुबे जी ने एक स्टेप लिए हैं, मनोज तिवारी जी ने स्टेप लिए हैं, और वैसे तो मैं पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस, और कंगना और पायल भी अपनी अपनी जगह पे बहुत सारे कुछ कहे हैं, और हमारे शेखर कपूर जी, मनोज वाजपेयी जी एक्टर, उन सब का हम बड़े अपेक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो जब बोला मैंने बात करेंगे पुलिस से, जरूर कुछ ना कुछ हमारे पास नया दिशा मिलेगा. लेकिन 14 तारीख अभी आ रहा है और अजीब लग रहा है कि अभी भी पुलिस में इतनी हिम्मत पुलिस जुटा नहीं पाई. मुंबई पुलिस इतनी हिम्मत अभी तक जुटा नहीं पाई कि वो सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. आप ये नोटिस किए हैं? सिर्फ वाया मीडिया खबर भेज रहे हैं, 4 न्यूज यहाँ से वहां से कुछ ना कुछ अपडेट होके आ रहे हैं, बट पुलिस couldn't gather enough courage to actually come and confront and come and face all the journalists, all the media houses from India, all over India, because everybody is waiting to hear from police. मुझे देखिए, कुछ बच्चे जैसे रूपा आंटी लिख के मुझे रिप्लाई किए कल ही रात को शायद. मुझे ऐसा अजीब लग रहा है कि कई लोगों ने, कुछ दोस्तों ने भी मुझे पूछा कि बिकम वेरी इमोशनल एंड इमोशनली अटैच टू इट. लेकिन मैं आपको सुनील जी ये बताऊं, क्या इमोशनल होने से
आप लॉजिक खो बैठते हो, ये क्या हम 2+2 कर दे नहीं, सकते हैं? नहीं ना। नो, नो, जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगाया गया है, अभी भी लगा हुआ है कि इमोशनल है, वो उसका मेंटल मेकअप कुछ दिनों से खराब था। तो मेंटल मेकअप कुछ दिनों से खराब होने से वो अपना लॉजिक खो बैठेगा। अभी कुछ ही दिनों बाद उसका दिल बेचारा रिलीज होने वाला है। ही नोज ही हैज परफॉर्म्ड वेल, ही नोज दैट ही विल बी अगेन इन द लाइमलाइट अगेन। उसके एक नया फिल्म आ रहे हैं। सो ऐसा लॉजिकल काम वो करेंगे, इसका सबूत अभी तक पुलिस प्रमाण के तौर पे कहीं से भी दिखा नहीं पाए, कहीं से भी करेक्ट, दिखा नहीं पाए। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग सारे जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं और जो जर्नलिस्ट हैं आप जैसे, जो और कई सारे मीडिया हाउसेस जो अभी भी लगातार कुछ ना कुछ सुशांत के बारे में कहीं ना कहीं दिखाए जा रहे हैं, इसमें इस घटना को, ये मुहिम को जो बचाए रखे हैं अभी भी। अ, मुझे ये लगता है उन सबके पास मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इमोशन जरूरी है जीने के लिए। और ट्रू, ऐसा दिन हम कभी नहीं देखना चाहेंगे कि हम सिर्फ अपने और अपने एकदम अपनों के लिए ही इमोशन बचाए रखें। मतलब दुनिया ऐसी जगह नहीं बन सकता है जहां पे हम सिर्फ अपना फायदा, अपना मुनाफा, मेरा किसका क्या हुआ है, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, यही चलता जाए। इससे हमको आज की तारीख में हम ऐसा नहीं सोचते और सोचना भी नहीं चाहिए। इस भारत में ऐसा कभी भी कल्चर नहीं था कि बस अपनों के लिए सोचो। तो ये तो ऑब्वियस है कि लोग अपने लिए सोचेंगे और सबके लिए सोचेंगे। इसीलिए सुशांत के फैंस आज भी कितने सारे आज ही एक कुछ देर पहले की मेल में भी आया कि उसके लास्ट पोस्ट जो था, मैं जानती हूँ बहुत सारे चीजें रिपीटेड आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अगर मैंने मिस कर गया तो अगर वो भेज दे मुझे मदद हो सकेगा और हम सबको सबके नजर में वो आ जाएगा अगर हमने मिस कर गया। तो मैंने आज भी उसके 2 वीडियो, कल रात भी उसके वीडियो, आज भी सुबह उसके वीडियो पोस्ट किए हैं। मैं सारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग भी आके एक बार बताएं कि लिगेचर मार्क को लेकर इतना सवाल है, पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अ, और बहुत सारी चीजें, आप बताइए पहले, आपका क्या राय है, मैं वो भी जानूं। मैं ये जानना चाहता था कि अब 28 डेज हो गए, आप तो लगातार पहले दिन से एक्टिव हैं। व्हाट हैव यू, मतलब जब मेरी पहली बात हुई थी उस दिन से आज तक आपने जो जो काफी कुछ किया होगा, चाहे आपने बताया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो जो किया पहले हम वो जानना चाहेंगे कि आपने अब तक क्या क्या किया उसके बाद। तो बहुत कुछ है जो आपने किया है, आप बताती नहीं है बस। देखिए मैं फिर भी कहूंगी, ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लोगों का एक मुहिम है, लेकिन हर इंसान अपने अपने तरह से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैंने अपने होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा है। ये सच है कि मैंने उसको पब्लिक नहीं किया है, ओके, करना भी नहीं चाहती हूँ, ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ओके, ये होम मिनिस्टर के पास जो मैंने सारे सवाल का इकट्ठा करके, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि हमारे मंत्रालय में इतना काम, अभी चाइना इंडिया चल रहा है और हजारों चीज चल रहे हैं, उसके बावजूद ये सब इतना गौर से देखेंगे, पॉसिबल नहीं है। सो मुझे ये सारी चीजें जो सवाल नहीं है नहीं मैं, नहीं मैं आई डोंट थिंक सो। अगर रूपा गांगुली आज के डेट में कोई चिट्ठी लिख रही हैं तो वो ध्यान से लोग नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो। ये नहीं हो सकता, आप इतना खुद को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। आपने अगर चिट्ठी लिखी तो पढ़ा जरूर जाएगा। बताइए मैम, क्या कुछ आपने लिखा उसमें, और व्हाई इज दैट लेटर सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज पीपल वो विल लाइक वांट टू नो। बिकॉज हमने निशिकांत दुबे का चिट्ठी हमने पढ़ी, हमने सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ अब तक किया वो भी पता है, लेकिन आप बहुत चुपचाप करती हैं। आप उतना पब्लिसिटी या उतना जानना, उतना पब्लिक में जाना आप नहीं करते हो। आप लेकिन लगातार करते रहते हो। आई बीन इन टच विद यू, आई नो। तो आई थिंक पीपल विल लाइक टू नो कि वो क्या है लेटर में और आपने क्या क्या कहा। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने लिखा ही, जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं।
और ये भी मैंने जिस पर ज्यादा जोर दिया है कि यूथ ऑफ आवर कंट्री अगर एस्पिरेशन रखना बंद कर दे तो खतरनाक हो सकता है। जो बच्चा चांद में जाने का प्लान बना रहा है, जो हर एक फिलोसोफर्स को कहा जर्मन फिलोसोफर उसके बर्थडे पे विश विश करने वाला इंसान है, कहाँ कहाँ उसके उसका जो पढ़ना एंड समबडी आल्सो मेंशन जस्ट आई थिंक टुडे और यस्टरडे ओनली कि उसके हैंडराइटिंग was slant and right inclined. These are so important things to understand a person's mindset. तो पुलिस इस सारी चीजों के बारे में ऐसे बस हवा हवाई कर दिया, छू मंतर कर दिया। तो ये सारी चीज मैंने एक मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे भी दिए हैं, सोशल मीडिया में डाले हैं, वो सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस विथ मोर जो मुझे एविडेंट लगा कि एविडेंसेस है, वो मैंने लिखा है चिट्ठी में। बट आई नो वेरी वेल कि सीबीआई का जांच डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को करना चाहिए, हालांकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक हमारा कोर्ट के तरफ जाना चाहिए जो सुब्रमण्यम जी कर रहे हैं, ईश्वरन जिम्मेदारी दिए हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग। आई विल आल्सो सेंड all sort of documents to them as well. मदद हो जाएगी, हम सब मिलकर सबको एक दूसरे को मदद करेंगे। देखिए अगर फडणवीस जी होते तो मैं तो सचमुच बॉम्बे पहुंच जाती, मैं महाराष्ट्र पहुंच जाती और उनके ऑफिस में जाके बैठ जाती, उनको रिक्वेस्ट करती और उनके ऑफिस के उनको डिस्टर्ब नहीं करती, बट उनके ऑफिस के बाहर या कहीं भी हो उनके ध्यान आकर्षण करने के लिए वहां बैठ जाती। लेकिन अभी अगर कुछ जाऊं कुछ करूं तो ये बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविज्म लग जाएगा, तो मैं इसीलिए मोर देन दैट मैम, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि शिवसेना गवर्नमेंट वो उतना सीरियसली इसको लेगी। आई एम नॉट श्योर। देखिए उद्धव जी चाहते तो ले सकते, मैं जानती हूँ उद्धव जी के दोस्त उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो ऐसे कुछ लोगों से बड़ा गहरा संपर्क रखते हैं, उनके ओथ टेकिंग सेरेमनीज में थे। और मैंने एक चीज पर भी गौर किया, सोनू सूद जी पर, जो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि सलमान खान को ऐसा नहीं कॉर्नर करना चाहिए, अच्छा इंसान है। देखिए हमें तो किसी पर कोई डायरेक्ट गुस्सा नहीं है, उनके बर्ताव पर हमारी नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत अच्छा इंसान नहीं होता तो उसके लिए भी ऐसे लोग नहीं भागते, ये आप जान लीजिए। इट इज बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत was a nice person, because of all his activities always showed that he had a humane quality. He had sparkling characteristic, very enthusiastic, very energetic, futuristic. तो ऐसे लोगों का सुसाइड कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हम तो है ही नहीं। और पुलिस की तरफ से बहुत, मुझे याद है मैम, लास्ट टाइम जब आप आई थी आपने कहा था कि वी आर कन्विंस्ड इट्स अ सुसाइड। हमने प्रूव कर दिया, अब आप प्रूव कीजिए कि व्हाई इट्स नॉट अ सुसाइड और व्हाई इट्स नॉट अ मर्डर। अब मेरा पॉइंट ये है कि पहले तो मैं ये पूछूंगा कि चिट्ठी में आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। हाँ कहिए। हाँ, चिट्ठी में ऑफ कोर्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। और वही एक्चुअली वो चिट्ठी अमित जी फॉरवर्ड कर सकते हैं या उनके तरफ से एक लेटर जा सकता है इनके पास, सीएम महाराष्ट्र के पास। मैं नहीं जानती एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे या किस तरह से लेंगे। देखिए ऐसे मंत्रालय में जिस तरह के काम होते हैं वो हमेशा बाहर ऐसे कहकर काम नहीं होते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए हम एक राज्यसभा एमपी है, तो हम
अपने मन मर्जी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरे नेतृत्व ने मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे अपने ट्विटर जो फॉलो करते हैं उसमें से मुझे निकाल नहीं दिया। मतलब ये मैं कह सकती हूँ वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए मेरे बर्ताव से, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने ये ध्यान रखा है हमेशा कि ऐसा बर्ताव मुझे कभी करना नहीं चाहिए कि पार्टी ने मुझे राज्यसभा एमपी चुना है, तो मैं मेरे कोई भी बर्ताव से मेरे पॉलिटिकल पार्टी जो मेरा एक अभी हाफ है, हाफ तो मेरा निजी जिंदगी है, निजी जिम्मेदारी है, कोई मुझे कुछ नहीं रोक सकता। क्या कर सकते, मुझे अनफॉलो कर सकते, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। अनफॉलो करने से भी आप टैग कर सकते हो, सब। राइट, राइट। तो लेकिन ये सब कुछ नहीं किए। तो जो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये लोग मुझसे, मैंने किसी को नाराज कर दिया। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी का पार्टिसिपेशन, ये मुझे और भी इनकरेज किया है कि बहुत सारे लोग इस पर गौर कर रहे हैं। मैंने आपको याद है बोला है। नहीं मैम, देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ना, यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है पब्लिक के इश्यूज को उठाना। अब इतने सारे लोग अगर आके लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोल रहे हैं और लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग अ सीबीआई प्रोब, यू आर ओनली पुटिंग देयर वॉइस इन फ्रंट ऑफ देम। वो चाहे आप हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, या आप सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, या वो चिराग पासवान हो, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे ओनली पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स नॉट अबाउट कि वो उन्होंने कहा और हो गया, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग हैज अ सिस्टम। इनफैक्ट फैंस को भी समझना पड़ेगा, दे नीड टू बी पेशेंट टू अलाउ थिंग्स टू हैपन। इट इज नॉट कि उन्होंने बोला और पीएम ने कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी है, वो भी देखना होता है, पुलिस भी है, वो भी देखना होता है। तो बहुत सारे कंसर्न आप लोग के दिमाग में होते हैं जो शायद जर्नलिस्टों के दिमाग में नहीं होते और फैंस के भी दिमाग में नहीं होते। मैं मेरा मेरा सवाल ये है कि in 28 days we have seen many ups and downs. Last time जब आप आई, आपने कहा कि I can see a son in him when I look at Sushant, and that's the reason why I get emotional, because मुझे लगता है वो बेटा होता तो ऐसा होता। क्या आपको लगता है कि इतने दिन से जब आप लड़ रही हैं, 28 दिन से आप लगातार लड़े जा रही हैं, कभी चिट्ठी लिख रही हैं, कभी स्टेटमेंट दे रही हैं, कभी अगर आपने वो ट्वीट नहीं किया होता ना पहली बार कि सीबीआई फॉर सुशांत, तो ये सीबीआई का डिमांड ही नहीं होता। ये पहला डिमांड आपने ही किया था। दूसरा, आपने अगर वो नहीं कहा होता कि इट्स अ मर्डर, तो इतना डिस्कशन मर्डर पे कोई खुल के नहीं करता। सब हश हश में बात कर रहे थे। इट टेक्स गट्स टू से ऑल दीज थिंग्स, बट आपने वो दिखाया, एंड दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज वेयर इट इज ब्रॉट बाय द फैंस। फैंस ही चला रहे हैं। आपने उस दिन भी उनको क्रेडिट दिया, आज भी यही है। जितना भी कुछ भी हुआ है, मैम सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो बाद में बात करूंगा। आपको लगता है कि जिस लाइन पर फैंस जा रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस दे विल गेट? आर यू होपफुल? आई विल कम टू डॉक्टर स्वामी लेटर। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सुशांत के फैंस ने बहुत अपने आप को रोक के रखा है। मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। इतना गुस्सा आता है कि मुझे कभी लगता है कि मैं सारे नियमों को तोड़ दूं, बस अपने आप को रोक के रखी हूं, बस रोक के रखी हूं। क्योंकि मैं कुछ ऐसा अपराध न कर बैठूं, ऐसा कुछ काम न कर बैठूं कि गलत ना हो जाए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, 28 दिन हो गया, अभी तक एविडेंस एक के बाद एक खत्म किए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब कहां मुंबई पुलिस दे रहा है? मुझे ये बताइए, वो घर इतने इतने कीमती घर है किराए के, क्यों सुशांत के परिवार के ऊपर वो घर का किराया रहेगा? वो घर छोड़ देना चाहिए। और घर छोड़ देगा तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो एक्सपेंसिव दो चार चीजें जो सुशांत के दिल के लगाव थे, वो अगर परिवार के लोग ले जाए, बाकी सारी चीजों को स्टेट गवर्नमेंट उस घर को पूरा लॉक एंड की करके उसके किराया वगैरह सारी चीज सरकारी जिम्मेदारी से नहीं ले सकते थे क्या? अगर लेते, फिर भी मुझे मुंबई पुलिस पर कुछ भी सम्मान बचा रहता, लेकिन बचा नहीं रह रहा है। मैं हमेशा कह रही हूं कि पुलिस पर सम्मान से बात करे, सबके ऊपर सम्मान से बात करे, लेकिन सम्मान करने लायक ये लोग अपने आप को साबित नहीं कर रहे। घर को ऐसे खुला छोड़ दिया है। वो फज के बारे में, डॉगी के बारे में हमको कुछ खबर नहीं है। एटलीस्ट कोई तो हमें बताए।
वो कोई डॉगी नहीं बताएंगे। था कि नहीं, कोई तो बताए डॉगी, वो डॉगी ड्रग था कि नहीं। आई हैव डॉग्स, मैंने 20-25 साल से मेरे घर पे हर किस्म के डॉग्स रहा, लैब से शुरू करके अब गोल्डन रिट्रीवर से शुरू करके हर किस्म का कॉकर, अभी पग्स, एवरीथिंग। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव 20 डॉग्स एट होम। आई हैव हैड एटलीस्ट 5-6 डॉग्स एट होम। तो मैं नहीं जानती डॉग्स किस तरह से बर्ताव करते हैं। आप घर पे अगर डॉग है, आपके घर पे अगर डॉगी है, तो आप अगर पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाए ना, कि डॉगी बीच में चिल्लाने लग जाते हैं। हैव यू सीन, यू मस्ट हैव सीन, एंड द पीपल हु हैव No, डॉग्स एट होम, I have never had pets, so I don't know. you don't know. Whoever who is listening to us, if they have kept pets at their home, the father cannot Friends scold have been a talking child. about this, man. The father cannot scold a child. बच्चे के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, डॉगी कूद पड़ेगा। कोई बहस नहीं सह सकता डॉगी, किसी को डांट दो वो सह नहीं सकता। that's how dogs behave. तो ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया, और वो डॉगी बाहर आ गया, और हर एक दिन No one knows. No one knows. No one knows where was he. No one knows. no one knows. Was he drugged? Was Sushant drugged? Was Sushant drugged? Nobody knows. So आप मुझे ये बता कि कहां से हम अपने आप को पुलिस के ऊपर सम्मान बनाए रख रहे हैं। ये तो No one even knows, man. No one even knows कि अगर सुशांत ने दो बार कहते हैं, 2 बार उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की, एक बार बाथरूम के बेल्ट से और एक बार कुर्ते से, तो 2 निशान होने चाहिए थे ना। तो फिर उसके गले पे एक निशान क्यों है? अगर उसने लटकाया था तो निशान तो ऐसा होना चाहिए था ना, तो राउंड क्यों है? देखिए, उसके घर में कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं है? लिगेचर ताला जो है अगर बाहर से खुल सकता था तो बंद भी हो सकता था बाहर से। मार्क लेकर तो सवाल है ही। वो मार्क वो लिगेचर, हाइट मैम, फैन और बेड का हाइट मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। 6 फीट का आदमी, 5 फीट 11 का गैप, ये दोनों लिगेचर मार्क प्लस ये एंड द सुसाइड नोट। यस, गो अहेड। सुशांत सिंह राजपूत, द डॉग, द लिगेचर मार्क, एवरीथिंग, नथिंग। एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, 10-15 चीजें हैं जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा, कोई दे ही नहीं पाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पूरी चीज, पूरी घटना ही सुबह हो गया है। आज अच्छा ये है कि उसकी बहन उस रात को घर पे थी क्या? नहीं, आई थिंक नॉट। नो, या नो, शी वाज नॉट शी देयर। वाज कॉल्ड। या आई विल टेल यू वन क्वेश्चन दैट आई रेज्ड, मैम आई विल टेल यू वन क्वेश्चन दैट आई रेज्ड वाज कि अगर हम ये प्रिज्यूम भी कर लें कि सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, इफ आई प्रिज्यूम, so in that scenario, the 4 people who were in the house, they need to be questioned about this, that why they did not break open the door. उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? उन्होंने बहन का इंतजार किया, उन्होंने चाबी वाला को बुलाया, आपने क्वेश्चन रेज किया कि वो हाई सिक्योरिटी लॉक वो 5 मिनट में कैसे बन गया? ऐसा क्या था कि 5 मिनट बन गया? हम लोगों ने पता किया, जो गोदरेज या जो भी हाई सिक्योरिटी लॉक बनाते हैं वो कहते हैं इसको बनाने के लिए मतलब अपनी कंपनी के ही लोग कर सकते हैं। फॉर दैट देयर हैज टू बी a duplicate key of the same lock available, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो वो कौन सा की मेकर था जिसने 5 मिनट में वो चाबी बना दिया? और उसके बाद आपने सिस्टर का वेट किया जो उतनी दूर से आ रही थी, और तब तक उस गेट को खोला नहीं। अगर वो सुसाइड भी कर रहा था तो बच जाता अगर दरवाजा तोड़ दिया गया होता। तो वर दे वेटिंग फॉर हिम टू डाई? इट्स अ नेचुरल क्वेश्चन। या सभी तो कहीं से कुछ भी तो मैच नहीं कर रहा है, कहीं से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। मुझे तो अभी सचमुच जानकारी लेते लेते सारी चीजों को मैं हर दिन लिखती रहती हूँ। मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है उसको रात को ही 2-4 अलग अलग ड्रिंक या कुछ उसमें दवाई ऐसा कुछ दे के उसको ड्रग कर दिया गया, उसके बाद उसको लटकाया गया, मार के लटकाया गया। मतलब सारा चीज ही ऐसा ही लग रहा है। कहीं से सुसाइड, और कहीं से इसको जोड़ कहीं से नहीं पा रहा है। नो वे। आपने लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे, एंड उसके बाद मैंने उसको कंपाइल किया, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे, फैंस के दिमाग में भी थे। 20 सिर्फ डेथ रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने तैयार किए। उन 20 में से एक का भी आंसर नहीं है। नंबर 1, 2 लॉयर्स,
एक निर्भया केस के लॉयर और एक जिया खान के लॉयर को, दोनों को मैंने बुलाया और वो क्वेश्चन तुमने सामने दिया. दे कुड नॉट आंसर इट बिकॉज दे सेड ये नहीं हो सकता, वी डोंट हैव एन आंसर. ये पुलिस क्यों नहीं बता रही? पुलिस ने, आपने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, ब्रीफिंग भी नहीं किया मैम, कुछ नहीं बताया पुलिस. वी डोंट नो. वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड. पुलिस ब्रीफ कर नहीं पा रहे. सॉरी मैंने रिंगर बज गया. पुलिस ब्रीफ कर ही नहीं पा रहे एक्चुअली. सबसे Yeah, ma'am. Please go ahead. जो point आप raise कर रही थी, please go ahead. Sister was not there in the night. Yeah. That's proven. She was not there. Yeah. एग्जैक्ट जो डेथ, टाइम ऑफ डेथ पता नहीं है. एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ पता नहीं है. जब पुलिस कमरे में गया तब बॉडी किसी ने नीचे ले लिए होंगे, ये अंदाजा कहीं पे पढ़ने को मिला है. कोई ठोस सबूत पुलिस के मुंह से है नहीं. दूसरी बात यह है कि उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर क्या था, उससे पता चलता है कि उसके डॉक्टर को नहीं बुलाया. डॉक्टर वाज नॉट कॉल्ड. डॉक्टर वाज नॉट कॉल्ड. सो आप बताओ ये क्या मतलब, ये क्या है? उसको मारा गया है, उसकी पूरी जान जाने तक वेट किया गया है. और एक सवाल सब बच्चों ने उठाए थे कि हॉस्पिटल, डिस्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल. बहुत सारे सवाल, ये सवाल मैंने पहले भी कर चुकी हूँ अलग अलग. I'll just elaborate, ma'am. One second. I'll just elaborate on the point that you're making about hospital. रूबा गांगुली जिन हॉस्पिटल का इशू की बात कर रही हैं, उनमें 3 हॉस्पिटल ऑप्शंस थे. 2 बहुत नजदीक थे, लेकिन उसको वहां नहीं ले जाया गया. जो सबसे दूर कूपर हॉस्पिटल था, वहां ले जाया गया. That's exactly what you're talking about, ma'am. Yes, कूपर हॉस्पिटल ले जा गया. वो दूर तो नंबर 1 है ही. उसका और क्वेश्चन मार्क अलग है. उसका रेपुटेशन भी ठीक नहीं है. तो नजदीक वाले हॉस्पिटल में अगर आप नहीं ले जाते हो, जिसमें जान अभी रहने का कोई अभी भी कोई मौका हो सकता है, मतलब उसको आप और भी डिले कर दो प्रोसेस को. ये दरवाजा तोड़ना आसान है, लॉक तोड़ना कठिन है. दरवाजा रहता है दो कब्जा रहता है. ऐसा was always into interior designing and structure building structures. बचपन से मैं ये करती आ रही हूँ 20-30 साल से. तो मैं बता सकती हूँ दरवाजा तोड़ना आसान है, लॉक खुलवाना मुश्किल है. लॉक को अगर हथौड़ी से तोड़ना आसान, लेकिन लॉक को खोलना मुश्किल है. दरवाजा को तोड़ देना आसान है. क्यों नहीं किया है लोगों ने? अगर उनको शक है या कोई एब्सोल्युटली वैलिड, कहीं से नहीं लगा कि ये सुसाइड है और घर के लोग को पता नहीं था. घर के लोग जो ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी वर सरप्राइज टू सी सुशांत ऐसा हो गया है, ये कहीं से भी नहीं लगता. कहीं से भी नहीं लगता. क्राइम सीन को कहीं से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई है. Nobody tried to recreate that. ये जरूरी था कि नहीं? आप बताओ. ये रिक्रिएशन को मैं क्लियर कर दूं मैम. जो रिक्रिएशन की बात कर रही है उसमें क्या होता है कि सेम हाइट का, सेम वेट का एक डमी क्रिएट किया जाता है. और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया लटक के, उस डमी को एग्जैक्टली वहां प्लेस करके देखा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है. पहली बात, जो 6 फीट का आदमी है वो 5 फीट 11 इंच के गैप में वो डमी खड़ा ही नहीं होगा. तो वहीं पे फेल हो जाएगा. मैम, दिस थियरी इज नॉट गोइंग टू वर्क. दिस थियरी ऑफ सुसाइड इज नॉट गोइंग टू वर्क. We are convinced, the lawyers are convinced, you are convinced, the whole world is convinced. Only Mumbai police is not convinced. And they are not telling also. They are not telling us also why they are not convinced. But they know that it's a murder. अभी इर्द गिर्द घूम रहे हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए, टू अबेटमेंट टू सुसाइड प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं. वो खुद ही जानते हैं. इसीलिए तो हम सीबीआई करे जा रहे हैं. बिकॉज जो मुंबई पुलिस के साथ ये लोग इतने आसपास रहते हैं, उनका हर दिन का लेना देना, आना जाना, संपर्क में रहना, इनके सिक्योरिटीज के तौर पे रहना, इनके इर्द गिर्द घूमते रहना, फैन फॉलोइंग सब नजदीक है. तो ऐसे क्लोज नेट में उन्हीं के द्वारा, ये तो ऐसे लॉ में भी नहीं पड़ता. जिस लॉ की वजह से सुशांत के ब्रदर इन लॉ
इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होके घुस नहीं पाएंगे। एक बार ऐसे खबर आई थी ना Yes. कि some people started saying Correct. that Francia brother-in-law will get into. He cannot. कॉन्फ्लिक्ट By ऑफ law, इंटरेस्ट में वो नहीं जा witness वो जा ही नहीं सकते। he can't. तो he can't be a part and part. He can be a part of the investigation. तो how come Mumbai police and Bandra police is part of the investigation? जहां पे 50 लोगों के तो घर वहीं पे है। Bandra is the main place. Bandra So is the basically main. you are saying ma'am कि there is a conflict of interest. There is a conflict of interest. मुंबई पुलिस के लोग जो रोज इनसे मिलते हैं, इनके साथ उनका लेना देना है, आना पीना है, चाय पीना है और मिलना है, वो तो उनसे इतना ज्यादा इंग्रेंड है कि वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसे? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इन्वेस्टिगेशन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करे तभी होगा। दैट्स व्हाई सीबीआई, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Yes, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही। तो मुंबई पुलिस खुद नहीं समझ रहे। मुझे तो अजीब लग रहा है कि मुंबई पुलिस अपना सम्मान बचाए नहीं रखने के लिए सीबीआई नहीं बोल सकता। इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू प्रूव इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, अगर वो जानते ही हैं कि सुसाइड हो गया है, इसने कर लिया सुसाइड, दुखी हो गया था, मतलब अपनी मां के साथ 4 फोटोग्राफ पोस्ट कर लिया, तो मतलब देखिए, हम जैसे लोग जिसमें जिन लोगों को बहुत सारे इंटरेस्ट है, वो कभी इतने आसानी से बोर नहीं हो सकते। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अब मुझे बताएं, मैं लॉकडाउन में मैं बोर हुई क्या? मैं तो हर दिन पॉलिटिक्स में इधर उधर भागती रहती हूँ। मैं लॉकडाउन में तो घर पे बैठी हूँ। क्या मैं बोर हो सकती हूँ लॉकडाउन में? हजारों काम रह जाता, और लॉकडाउन के दौरान लगा के यार ये भी खत्म कर सकते, वो भी खत्म कर सकते, ये भी खत्म कर सकते। स्टार गेजिंग वाला इंसान मुंबई में तूफान आ रहा है, वो देखने वाला इंसान, ये ऐसा हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट चला नहीं, जाए इट्स नॉट पॉसिबल। कहीं से। मतलब मैं बता रही हूं, कहीं से नहीं लगता ये सुसाइड है, कहीं से नहीं लगता। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मुंबई पुलिस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, अगर वो कन्विंस हैं कि ये सुसाइड है, तो व्हाई डोंट दे कम फॉरवर्ड एंड टेल द मीडिया व्हाई इज इट सुसाइड? व्हाई आर दे नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड प्रूव टू द वर्ल्ड इट्स अ सुसाइड? दे कैनॉट, दैट इज द मेन थिंग ना, दे कैनॉट, बिकॉज पुलिस का तो यही झंझट है। देखिए, पुलिस के बारे में मैं हमेशा बहुत सम्मान के साथ बात करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मुझे हर पुलिस के, हर स्टेट के पुलिस के बारे में, हर घटना में मुझे बड़ा सम्मानजनक रिएक्शन या सम्मानजनक। आप आपके आपके अपने स्टेट में मैम, आपके अपने स्टेट में आपका एक्सपीरियंस क्या है? वहां भी तो पुलिस है ना, वो भी तो बहुत कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं तो ये बता सकूंगी, आज ये पश्चिम बंगाल पुलिस के वजह से, पश्चिम बंगाल के पुलिस के 18 पीपल, 18 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग लेडी ऑफिसर्स, मेरे इतने लंबे बालों को पकड़ के, मैंने ऐसे क्लच लगाती थी, ऐसे जो लंबे बाल होते, लंबे बाल थे ना मेरे, तो ऐसे क्लच लगाया करती थी, नॉर्मल जो ऐसे क्लच होते हैं, इसको बालों को पकड़ के यहाँ लगाने का, उससे मुझे सारे सर पर ठोक ठोक के छेद करके भर दिया है। 2 ब्रेन हेमरेज मुझे झेलना पड़े। घटना घटी थी 22 मई को 2016 में। उसके बाद 2 बार मुझे ब्रेन हेमरेज झेलनी पड़ी, और तीसरी बार एक माइल्ड, बहुत छोटा सा एक, लेकिन मुझे आंखों में एक पोर्शन, यहाँ दिस इज द वन पोर्शन वेयर आई हैव लॉस्ट, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट व्हिच आई हैव I've got thanks to West Bengal police. Thanks to West Bengal police, because पुलिस और गूंज साथ खड़े होकर मुझे मारे थे। लेकिन फिर भी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे भी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये 2.5 साल में, मैंने सिर्फ 2.5 साल पश्चिम बंगाल में आंदोलन करने का मुझे मौका मिला था। महिला मोर्चा बोल के एक पद होता है बीजेपी में, उसमें मुझे 1 साल 1.5 साल काम करने का मौका मिला था। उससे पहले मैं कार्यकर्ता के रूप में इधर उधर जो भी घटना घटते थे मैं पहुंच जाती थी। तो वो 2.5 साल के टाइम में ऐसे कई जगह पे कलकत्ता के पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस एंड कलकत्ता पुलिस इन डिफरेंट एरियाज, दे हैव हेल्प्ड मी। हमने 30 मर्डरर एंड रेपिस्ट को अरेस्ट करवाया, 30 टू 35।
मर्डरर्स एंड रेपिस्ट्स। एक साल में पश्चिम बंगाल में कुछ 35,000 महिला निर्यातन का घटना होता है, मोरलेस 35 to 30,000 ऐसा ही होता है। अभी तो रिपोर्टिंग बंद हो गया तो संख्या कम दिखता है, लेकिन हम जब आए थे तब उस वक्त उतना ही दिखता था, अभी भी उतना ही घटता है, रिपोर्टिंग कम हो गया। सो वो वही पुलिस है जहां सम्मान के साथ बैठ के भी मैंने ऐसे अरेस्ट करवा सकी, मैंने खुद अकेले में, अकेले अलोन, व्हेन आई वाज इन महिला मोर्चा इन वेस्ट बंगाल। खास कुछ पश्चिम बंगाल में महिला मोर्चा खास कुछ था नहीं, सॉरी टू से, बट दैट्स अ फैक्ट। तो मुझे याद है ये 30 मर्डरर, 30 रेप, गैंग रेप, विधाननगर में गैंग रेप पकड़ दिया, डायमंड हार्बर में यंग बच्चा को पीट के मार दिया, बारुईपुर में टांग के मार दिया। 2 दिन बैठ के गांव के घर पे 2 दिन बैठ के पुलिस मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन मैंने वहां पे बैठे बैठे रह के सारे को अरेस्ट करवाया। 35 मर्डरर्स एंड रेपिस्ट्स को मैंने So this अकेले is a common story across the country with different police. हाँ, तो ये पुलिस, देखिए ये मदद पुलिस ने भी की है, नहीं तो अरेस्ट कैसे होता, किए ना पुलिस। तो आप सबको सबको नहीं बोल सकते। पुलिस एज तो मुंबई पुलिस में भी तो ऐसे अफसर होंगे ना मैम, मुंबई पुलिस में तो ऐसे ऑफिसर्स होंगे ना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, हर स्टेट में अच्छे पुलिस होते हैं, उतने अच्छे नहीं है वैसे पुलिस होते हैं। समाज में हर वर्ग के लोग अलग अलग जगह पे कुछ गुड, नॉट सो गुड, बैड, नॉट सो बैड होते हैं। समाज ऐसे ही बनते हैं। ओके ओके मैम, ये जितने पॉइंट्स आपने बोले, जो क्वेश्चंस आपने रेज किए, क्या आपने उस चिट्ठी में अपने जो लेटर लिखा है अपने होम मिनिस्टर को, उसमें ये पॉइंट सारे लिखे हैं क्या, द मिसिंग क्वेश्चंस? मेरे क्वेश्चंस रेज की, I'm going to I'll finish. I'm going to write one more letter. Actually the letter is prepared. Okay. Actually I prepared it, but Subramaniam Swami जी ने किए थे, तो मैंने उनका सुनना भी चाहती थी कि I'm coming to that question. Yes. So I'm going to the letter is prepared. I'm going to write a letter to the CBI director, and I'm also I will be sending CBI a letter director also. CBI director and Chief Minister Maharashtra. Yeah. तीनों को लिखना है. Okay. Yeah. So basically you're writing to the Home Minister, which is Amit Shah, then you're writing to CBI director, and then you're also writing to the Maharashtra Chief Minister. Home Minister letter is written. It has already been done. Okay. उसके बाद ही मुझे धीरे धीरे दिखने लगा कि 2-4 खबर आने लगे, यू नो, अपडेटेड न्यूज में छोटे छोटे चीजें आने लगे, तो ये मुझे देखने को मिला है। तो और अभी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और सीबीआई डायरेक्टर के पास जाना है। आई हैव बीन Now coming to ma'am, what Dr. Subramaniam Swami has raised. उन्होंने एक लॉयर को बोला है कि आप इसको देखिए कि इसमें पीआईएल हो सकता है या कोई क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल हो सकता है। आपको लगता है कि डॉक्टर स्वामी के इसमें आने से इस केस में फायदा होगा? क्योंकि फैंस हैव बीन रियली फाइटिंग, और 28 डेज में आई थिंक यू आर द बिगेस्ट फाइटर सो फार. सुब्रमण्यम स्वामी हैज जस्ट कम 2 days ago, बट यू हैव बीन कंसिस्टेंटली फाइटिंग. बट उनके आने के बाद क्या ये केस अब कुछ होप है कि अब एक्सपेडाइट हो जाएगा? हाँ, बिकॉज ही इज टेकिंग द राइट कोर्स ना, लॉयर। मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ कि जो डॉक्टर्स है वो मदद करे, जो लॉयर्स है जो मदद करे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कब का हाई कोर्ट में लगा देती महाराष्ट्र में, और बॉम्बे हाई कोर्ट में लगा देती, सुप्रीम कोर्ट में लगा देती, कब का लगा देती केस। आई वुडंट हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग। आई डोंट हैव मनी. I don't have a brother who is a lawyer, so I'm requesting all the lawyers to come. और ऐसा नहीं है कि पीआईएल आप एक ही कर सकते हो, 10-10 पीआईएल हो सकता है, 10-10 पिटिशन हो सकते हैं, सब मिलके लगा दीजिए एक साथ, सुप्रीम कोर्ट तक लगा दीजिए, हाई कोर्ट मुंबई बॉम्बे लगा दीजिए, जिनके पास जो क्षमता है। आभा द लेडी, another lawyer, आभा सिंह, she did ना, she did. So there are a lot of people who can be of some help, छोटे करके। लेकिन हम सबको इकट्ठा होके, सबको एक दूसरे का साथ देकर इस केस को सीबीआई तक ले जाना है, और इस केस का हमको एक सही जवाब चाहिए। और मैं यकीनन अभी भी कह रही हूँ, I'm 100% sure it is not a suicide. It is
Not even an abetment to suicide. It is a murder. It is a pre-planned murder. It is not even. Okay, ma'am. What is your priority? What is your priority? To find out what happened to Sushant Singh Rajput on that day. Is that a priority? Or is the priority right now to find out what goes wrong in Bollywood and whom should you boycott and whom should you not? What should be the priority number one? Because it has to be decided. You can't just leave it vague. So what is the priority? What should be the priority? Which everyone should understand. If this is the priority. Is CBI investigation which will reveal what happened to Sushant Singh Rajput, that is the priority, or the rest of it, or both? See, इसमें दो तरीके से काम हुआ है इस घटना में. सुशांत राजपूत के बारे में दो तरीके से काम हुआ है. One team, I think I've said it somewhere, one team was actually planning the murder. One team was planning to defame him. एक डिफेम करने का टीम चल रहा था. ऐसा हो सकता है जो डिफेम कर रहा था उनको पता नहीं कि जो मर्डर का प्लान चल रहा है. और ऐसा हो सकता है रिया और somebody or somebody or somebody who were part and parcel of Sushant Singh Rajput and maybe a very close aide, very close friend, day-to-day interaction में था. Probably that person or 2 or 3 people were actually coordinating both the things. आप अच्छे से गौर करो इस बात पर और आप देखो ये साइमल्टेनियसली चल रहा था. साइमल्टेनियसली चल रहा था. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सब में जुड़े हुए. तो पनिशमेंट तो सभी चीजों पर होना चाहिए. जिन्होंने उन्हें इंसल्ट किया उनका अलग किस्म का पनिशमेंट होगा. जिन्होंने मर्डर का डायरेक्ट प्लान किया उनका अलग किस्म का पनिशमेंट होगा. जो वो ऐसा हो सकता है कि ही वाज अबाउट टू डिस्कवर समथिंग. ऐसा हो सकता है ही माइट हैव डिस्कवर्ड समथिंग. ऐसा हो सकता है कि उसके कंपनी में जो कर रहे थे वो उसके कंपनी की कुछ प्रोजेक्ट रेडी हो गया था फ्लोर पर. तो बहुत सारा कुछ हो सकता है. ये भी कहा जा रहा है. बहुत सारा कुछ हो सकता है. ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात है ही नहीं. ये ऐसा हो. तो हाउ डू यू गेट टू नो? आप जब मर्डर एंगल से जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या ये सब चीजें सामने नहीं आने लगेंगी? तो मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट मर्डर इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज अ मर्डर. मैं बता रही हूँ मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन. लेकिन उसके साथ साथ सुसाइड के जो प्लानिंग बनाए जा रहे थे, उसका डिप्रेशन की जो स्टोरी बनाए जा रहे थे, वो लोग भी बहुत अहम है इस प्ले में, इस एक्ट में. सारे वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. उनके डोमेस्टिक्स जो असिस्टेंट्स हैं, उनके जो दोस्त लोग हैं, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने आइडिया कि वो तीनों नौकर कहाँ हैं? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया? किसी ने कुछ दिया? मेरे पास कुछ नहीं आया. वो तीनों नौकर कहाँ हैं? उनके बारे में कुछ उस फिल्म के बाद से मैंने देखा नहीं उनको कहीं भी पब्लिक में. कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं. उनके फ्रेंड का तो आया, लेकिन तीनों नौकर के बारे में आपको कोई नॉलेज, कोई किसी ने कुछ भेजा? वो कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है. पुलिस की विटनेस है. कैसे छोड़ के हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है. ये कहीं बंबई छोड़ के भाग ना जाए. You know, their passport should have been seized. Their identity proof should have been taken. ये कैसे हो सकते हैं लोग खुला? किसी को कोई खबर है? मुझे तो कुछ नहीं है. आप बोल रहे आपको नहीं है तो आप पूछिए बाकी सारे लोगों से, जर्नलिस्ट से पूछिए, आपके दोस्तों से पूछिए, मीडिया से पूछते हैं. चलिए उसके वो जो असिस्टेंट है वो लोग कहाँ है? Where are they? जैसे where is his dog? Probably dog must have been taken by the family. ऐसा हो सकता है. यही हम उम्मीद करेंगे कि डॉग might have been taking. ये भी कंफर्म नहीं है मैम. ये भी कंफर्म नहीं है. There is no confirmation. देखिए ऐसा हो सकता है कि उनके परिवार के, देखिए उनके परिवार के लोग तो हर विषय में बात नहीं करेंगे ना. See, they are troubled. So we don't want them to be troubled more. इतने बहन के बाद जब भाई होता है घर पे, वो लाडला होता है घर का. मैम there are few people who doubt the family also. मतलब मैं तो समझा के थक गया.
मेरी बात तो समझ में नहीं आती। मैं बोलता हूँ फैमिली को छोड़ दो, बट देयर आर पीपल हु आर डाउटिंग द फैमिली आल्सो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। अ, ऐसे ऐसे भाई के ऊपर सब लोग, ऐसे होनहार भाई के ऊपर सब लोग का बड़ा प्यार रहता है। और उसके हर चीजों से, उसके परिवार के, उसके पिताजी के, उसके हर परिवार के सारे लोगों को आप देख लो, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, डाउन टू अर्थ पीपल। ये तो जैसा लग रहा है आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो फिल्मों में था, मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो पॉलिटिशियन है, मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी सोचा है एमपी बनेंगे। मतलब बहुत लोगों के लिए एमपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं तो समझती नहीं, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत एमपी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर का अपेक्षा करके रखते हैं बैठे। लेकिन मेरे परिवार में कोई मुझसे झगड़ा भी हो जाए, बहस भी हो जाए, मैं किसी को चिल्ला भी लूं, भाई बहन आपस में झगड़ा भी कर लूं, ऐसा कभी कोई कर सकता है? हो ही नहीं सकता। जो मिडिल क्लास परिवार के लोग होते हैं ना, उनका बॉन्डिंग ही सबसे बड़ा होता है, मतलब पावर होता है। मिडिल क्लास लोगों के अंदर उनके परिवार का बॉन्डिंग सबसे बड़ा उनका पावर रहता है। तो ऐसा लगाना, कहना बहुत गलत होगा। ऐसा हो सकता है, हम लोग एक सब मिलके उनके परिवार के पास एक चिट्ठी लिख सकते हैं, आप भेज सकते हैं कि आप एक बार बता दो इफ द डॉग इज विथ यू और नॉट। हम लोग को उसके जितने डॉग्स के साथ फोटोग्राफ देख रहे हैं तो बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन पुलिस को इसके बारे में जवाब देना चाहिए, और परिवार ना भी बोले, कुछ जवाब ना भी दे। एक्चुअली आई आई इवन वांट परिवार को सामने ना आना अच्छा रहेगा। इवन आई ओके, वांट क्यों मैम? व्हाई? that, because see, nobody will spare them, nobody will, no, if they will not be spared if परिवार comes in front ना, साधारण लोग हैं, उनको बस इतना ही करना चाहिए कि ठीक है, अब अगर केस लड़ रहे हो तो ऐसा नहीं है सुब्रमण्यम जी को परिवार का सिग्नेचर चाहिए, इसको लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है, anybody can do appeal, it's not necessary to bring in the family members as it is a grieved family। तो आप क्यों उनके पिताजी को इस पे घुसाओगे? क्यों? खाम खा क्यों यार? मुझे तो नहीं लगता परिवार के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके मैम, परफेक्ट। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी वैलिड पॉइंट यू रेज। बिकॉज़ फैमिली को लेकर सवाल पूछना मुझे बिल्कुल अनजस्टिफाइड लगता है। मैं बहुत कई बार बोल चुका हूँ, कम से कम फैमिली को छोड़ दो, बहनों को छोड़ दो, फादर को छोड़ दो, उसके बाद जो देखना है सुबह से। लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आती और वो फिर भी उस पर करते हैं। मैम, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मेजर इशू उठाया, उन्होंने 3 पॉइंट्स उठाए। एक तो वो जो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये तीन खान्स को लेकर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली 2 ट्वीट किए अपार्ट फ्रॉम द केस जो कल किया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि तीनों खान चुप क्यों है। उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिया था, अब तक किसी ने नाम लिया नहीं था, लेकिन उन्होंने नाम लिया ट्वीट में और कहा कि तीनों चुप क्यों हैं। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एसआईटी के से, और जो ये पता करे कि आखिर बॉलीवुड में क्या चल रहा है, क्या अंडरवर्ल्ड का पैसा आ रहा है, क्या बाहर से पैसा आ रहा है, क्या अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, या टैक्स इवेजन हो रहा है, या हैरेसमेंट हो रहा है। ये सबका एक मल्टीपल एजेंसी मिलकर इन्वेस्टिगेट करे। निशिकांत दुबे का मैम आपने याद होगा, उन्होंने चिट्ठी में एग्जैक्टली यही कहा था। ये बार बार लोग क्यों कह रहे हैं? क्या गड़बड़ है? क्या बॉलीवुड में सब कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, ये बॉलीवुड में ये स्पेशली ज्यादा होता है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। मतलब एक स्टेट चलने वाला पैसा सिर्फ बॉलीवुड में घूमता है। माय गॉड। स्टेट चलने वाला पैसा, एक स्टेट राज्य सरकार चलने वाला पैसा सिर्फ बॉलीवुड में घूमता है। मतलब जितना एक स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, दैट्स व्हाट शी सेइंग, कि जितना एक स्टेट, कोई भी स्टेट में जो रेवेन्यू आता है, उतना बराबर पैसा लगभग सिर्फ बॉलीवुड में आता है। यस, their lavish lifestyle, their films में जो खर्चा, ये सारे चीज, everything, Bollywood is a place where lot of money is involved, lot of फिल्म बनाते हैं, वो चाहिए होते पैसे, तो उसमें अलग अलग किस्म के पैसों के इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं, तो उसमें जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन वो इसके साथ एकदम डायरेक्टली ना होते हुए भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक पार्ट हो सकता है, ये एक पार्ट हो सकता है
कि वो जो फिल्म बनाने जा रहे थे, उसके जो प्रोडक्शन खुद शुरू करने वाले थे, ऐसा तो नहीं है कि उसके प्रोडक्शन में जो लोग फाइनेंस कर रहे थे, उनको हटा नहीं पाए तो सुशांत को हटा दिए। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो थे जो सुशांत के एक्टिंग कैपेबिलिटी पर भरोसा था। दे वर फॉन्ड ऑफ सुशांत, दे वर टेकिंग सुशांत मोर एंड मोर, दे ऑफरिंग फिल्म्स टू सुशांत मोर एंड मोर। सुशांत के पास फिल्म की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसा तो बहुत हो सकता है कि राजपूत के पास बहुत सारा काम था, मौका था, और बहुत सारे फाइनेंसेस भी थे, जो लोग जुड़ रहे थे उनके साथ। तो वो बहुत बड़ा बड़ा नाम था, उनके साथ जोड़ नहीं पाएंगे, उनको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सुशांत को ही खत्म कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें इसीलिए फाइनेंशियल वो मापदंड का हिसाब किताब करने के लिए भी ईडी वगैरह को आने की जरूरत है। उन्होंने कार्टलाइजेशन का भी इशू रेज किया कि कार्टलाइजेशन इज आल्सो हैज टू बी लुक्ड इनटू बाय द एसआईटी। और एक चीज और कि उन्होंने पूछा कि व्हाई आर द थ्री खान्स नॉट बीइंग क्वेश्चनड, आर दे अबव लॉ। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि आर दे अबव लॉ, और ये तीनों को ही पूछा। मैं भी जानना चाहता हूँ इन तीन खान की बात क्यों हो रही है। तो ये तो हो सकता है और भी लोग, खान को ही स्पेसिफिकली क्यों। देखिए, बॉम्बे में बेसिकली बहुत सालों से दाऊद का आप किसी को इतना आसानी से हम बुद्धू नहीं समझ सकते। दाऊद का पैसे से बॉम्बे में सालों सालों भर चलता आ रहा था, अभी भी चलता आ रहा है, उनके अपनों से। भाई भाई सब उनका नाम है, सब अलग अलग भाई है उनका, सब नाम ही ऐसा होता है उनका, सब भैया भाई बोलते सबको। तो ऐसे लोगों को भाई बुलाया जाता इसलिए सलमान को भी भाई बोला जाता है। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये कोई भी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मैं ये बता रही हूं, जिनकी जिंदगी वहां लगी हुई है, जिनका उठना बैठना वहां बॉम्बे के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी को हम खतरे में नहीं डाल सकते। yes. एक सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे वापस नहीं आ सकते हैं, हम और किसी का जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं छोड़ सकते कि जिनका जान ये लिए हैं, ये राजपूत का, ये रिया और ये सबको एकदम एब्सोल्युटली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सीज करके हाउस अरेस्ट में रखना चाहिए, हाउस अरेस्ट में रखना चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। मैम, जब आप लोगों को इतना सारा पता है, सुब्रमण्यम स्वामी को पता है, आपको पता है, निशिकांत दुबे को पता है, गवर्नमेंट को भी पता होगा, सेंटर में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी पीएम है। तो एक सवाल कल जो लॉयर्स आए तो पूछ रहे थे, अगर आज नहीं हो सकता तो कब हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। तो अगर इतना सब कुछ पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं। देखिए, पुलिस के काम करने के तरीके, मुझे जितना भी गुस्सा क्यों ना आए, तरीके ऐसे होते हैं या जहां पे पुलिस या चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र जब तक खुद नहीं बोलते हैं कि यस हमको सीबीआई को देना है, तब तक से कोर्ट तक जा सकता है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। न सीबीआई को, प्रोविजन यही कहता है, हाँ, प्रोविजन यही कहता है, रूल से ही कहता है। रूल यही कहता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसे ऐसी जगहों पे जाके अटका देता है, हम लोग के हाथ पैर बांध देते हैं। समटाइम्स मुझे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में लेकर बहुत गुस्सा आता है। मैं राज्यसभा जब चालू हो जाएगा, मैं जरूर इस बात को फिर से उठाऊंगी कि मरने देने हैं क्या, क्या ये सारे एविडेंस खत्म करने देने हैं क्या, ये क्या हम ऐसी बात संविधान 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 बोल रहे हैं और ऐसे एविडेंस खत्म हो रहे हैं और पुलिस इसको कर नहीं रहे कुछ। टाइम लगता है, लेकिन अगर टाइम, ये तो एक ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग कह दिया कि हम टाइम नहीं देंगे, लेकिन टाइम लगना और पुलिस के बयान जो इतने टूट टूट के आ रहे हैं, इसमें सबकी नाराजगी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टाइम, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, लगता है, सब जानते हैं। आज हुआ कल घटना निकल गई, ऐसा होता नहीं है।
और रूल है, आप ऐसे भी किसी को सबको फटाफट बिना वजह अरेस्ट नहीं कर सकते हो, बिना वजह आप किसी को हरेस भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो नजदीक वाले थे, जो घर पे थे, उनको तो आप हाउस अरेस्ट कर ही सकते हो, या ऐसा तो बोल ही सकते हो कि ठीक है आप नहीं जाओगे, आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ देके जाओ। नहीं, या बट क्वेश्चन मैं फिर पूछ रहा हूँ, 4 लोग उस घर में थे, एक को हम लोग ने उस इंसिडेंट के बाद देखा, उनका जो फ्रेंड है सिद्धार्थ पिठानी, बट वो 3 लोग जो की हैं विटनेस, रिया चक्रवर्ती घर में नहीं थी, इसलिए उनके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, और उनका जो आप कह रहे हैं वो सही है कि उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, उनको कैसे ऑब्जर्वेशन में रखना है, कहाँ रखना है, पुलिस डिसाइड करे। लेकिन वो तीनों जो उनके हाउस हेल्प है, जो कुक थे 2 और एक हाउसकीपिंग स्टाफ था, वो तीनों की विटनेस है, वो तीनों कहाँ हैं? दैट इज अ मिस्ट्री। हु दे आर की विटनेस, दे आर की विटनेस, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। यस, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। ये सब तो बहुत नाराज कर रहा है हम लोगों को। यही सब तो सवाल हमने भी। Okay, man. One last question before my question ends. जो कुछ भी हुआ अभी तक, जितना भी जहां भी पहुंचे, आपको लगता है कि अब आप 4 लोग, पहले केवल आप थी, उसके बाद मनोज तिवारी आए, फिर निशिकांत दुबे आए, फिर बाबुल सुप्रियो भी आए, मैं सिर्फ एमपीज की बात कर रहा हूँ, और अब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सीनियर सीजन लीडर, ही इज नॉट एन एमपी, ही इज अ सीजन लीडर, इज एक्स फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। बीच और वो उनके बारे में एक और चीज बताता हूँ, मैंने कल भी कहा था मैम आए, कि शेखर सुमन जी भी आए, शेखर सुमन जी yes, भी आए। no, I'm just talking about the politician. From the BJP I'm talking about. Right now only talking about the BJP. ओके Okay. So बीजेपी से 4 लोग आए, अब सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कल मैंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी का इतिहास जो है ना मैम, हिस्ट्री बहुत क्लियर है। वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, वो अपना क्या भला करेंगे नहीं करेंगे, वो कितनी बार मिनिस्टर बनेंगे उसका पता नहीं, लेकिन वो जयललिता के पीछे बने तो उनका नैया डूब गई, वो डीएमके के पीछे पड़े, डीएमके का नैया डुबा दिया, सेंटर में उन्होंने अपना यूनाइटेड फ्रंट का साथ दिया तो कांग्रेस का नैया डुबा दिया, वाजपेयी का नैया डुबा दिया, मतलब वो जिसके पीछे पड़ गए ना उसकी तो नैया डूबी। तो क्या इस बार वो बॉलीवुड के पीछे पड़ गए? तो अब माना जाए कि बॉलीवुड की में जो सो कॉल्ड बिग विग्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है, क्या उनकी भी नैया डूबी? क्योंकि अब ये लगे, क्योंकि ये तो जिसके पीछे पड़े समझो उसका काम तो। ये होना चाहिए। हमको तो आशा का किरण दिख रहा है, लग रहा है अगर ओके, इस तरह से अच्छे से कोर्ट तक जाए और तगड़ा सवाल जवाब होने का मौका मिले, तो कोर्ट ऑर्डर से ही सीबीआई आने का सबसे ज्यादा मौका है। आपको लगता है कि अब शायद भले ही 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगे, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अगर मुंबई पुलिस इसमें फाउल प्ले इन्वेस्टिगेट नहीं करती, अभी भी मर्डर एंगल को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, यदि करती है तो ग्रेट, नहीं करती है तो आपको लगता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं नहीं, ऑर्डर होगा ही होगा, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूँ। मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने वेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 2 महीने 3 महीने 4 महीने ओके, में जितना सबूत बचा हुआ है, काना कौड़ी भी नहीं रह जाएगा। वो सब खत्म हो जाए, वो सब खत्म हो जाए। काना कौड़ी भी बचा नहीं रहेगा। मैं 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए इंतजार नहीं करने वाली हूँ। मुझे इतने महीने इंतजार नहीं करने हैं, और मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस भी इंतजार करेंगे इतने दिन तक। और ये कोई नहीं, जरूरी भी नहीं तो क्या ये जल्दी हो सकता है? हाँ, क्या ये जल्दी हो सकता है? ये ये जल्द जल्दी हो सकता है? ये जल्दी हो सकता है, हो सकता है, ओके, 100% हो सकता है। दैट्स अ बिग थिंग। सीबीआई हाथ में ले ओके, लेते ही सारे चीज को कंट्रोल कर सकते सीबीआई, या सीबीआई ले ले या ईडी एक ओके, साथ एक सिट गठन कर ले, जैसे निशिकांत जी ने कहा है। इस तरह से एक सिट गठन करके सारे इकट्ठा सब लोग, सब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज और एजेंसीज आ जाए, तो मुंबई पुलिस का हाथ भी सशक्त हो जाएगा, और सब मिलके एक, देन वी कैन रिलैक्स, देन ओनली वी विल ओके, रिलैक्स। उससे पहले तो सो हमको यू आर सेइंग, और उतने ज्यादा विटनेस डिस्टर्ब किए जाएंगे, इसीलिए इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तुरंत ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो बचा है वो प्रोटेक्ट हो जाए। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट, जितना बचा है वो प्रोटेक्ट हो जाए। क्योंकि डैमेज तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक इट्स अनदर केस ऑफ बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, दिस इज हाउ आई सी इट। यस, और मुझे लगता है राज्य सरकार, मुझे नहीं ये नहीं पता कि राज्य सरकार उस घर को सील क्यों नहीं कर दिया, और घर का पूरा जिम्मेदारी, मतलब घर के रेंट से शुरू करके हर चीज तो राज्य सरकार को देना चाहिए। घर खाली नहीं करना चाहिए।
बिकॉज नहीं, एवरीथिंग दो चीजें हैं मैम जो सबसे पहले होनी चाहिए थी। क्राइम सीन को सील करते हैं और उसमें कोई भी चीज तब तक मतलब अब नहीं करते, हटाते, जब तक वो केस एक कंक्लूजन में नहीं पहुंचता है। नंबर वन। नंबर टू, साथ में जो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनका जो गैजेट्स है, ये तीनों चीज को सील करके प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ना तो सोशल मीडिया अकाउंट प्रोटेक्ट हुआ है और ना घर सील हुआ है। अब घर खाली होने की बात भी हो रही है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंक्लूड किया है, कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश इट्स अ सुसाइड, उन्होंने उसको माना और सब कुछ, नथिंग रिक्वायर्ड, नो नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अभी 2 दिन पहले आया कि ट्विटर का ये लोगों ने चिट्ठी लिखा। सो रहे थे क्या? सीसीटीवी कैमरा भी सीज किए, सो रहे थे क्या? मुंबई पुलिस का 20-20 दिन लग रहा है एक एक चीज, एक एक स्टेप लेने के लिए। शर्मनाक, 25 days, after 25 days they collected the CCTV footage. शर्मनाक है, शर्मनाक है, ashamed। फिर भी हम कोशिश। Okay ma'am, so before you go ma'am, whatever you want to, if you want to conclude something, you want to say something, you are free, otherwise we'll close the session. या You want to say anything to the fans, anybody? मुझे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को बहुत लोगों ने बहुत प्यार से उनको सीएम बनाए हैं महाराष्ट्र में। अब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि महाराष्ट्र में जाके एक लड़के का इस तरह से जान गया और जो होनहार लड़का महाराष्ट्र का नाम और बड़ा कर सकता था, भारत का नाम बड़ा कर सकता था, उसका जान उसको गंवाना पड़ा। तो अभी ये चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के ऊपर ये और भी एक जिम्मेदारी बन गई है कि उनके राज्य के सम्मान, उनके लोगों के सम्मान, जिन्होंने उनको जी वहां पे बिठाए हैं, उन सब के सम्मान, बॉलीवुड बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के सम्मान, सारी चीजें भी उनके हाथ में है। अगर वो सारी चीजों का सम्मान का परवाह वो करते हैं तो जरूर वो खुद ही सीबीआई तक पहुंचा देंगे। कल परसों तक, मंडे ट्यूसडे तक हमको सही एक ऐसे खबर मिलना चाहिए, ऐसा खबर मिलना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 14 तारीख की 14 थी, वो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र इसको सीबीआई पर उठा दे हाथ में? क्यों नहीं कर सकते? 14 को करना चाहिए। मैं तो मांग करूंगी, आप सब मांग करेगा। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र 14 को ही, ये 14 एक महीने के दिन हो गया, हो जाएगा, उसी दिन उसको सीबीआई को ऊपर हैंड ओवर कर दे। करना चाहिए। Okay ma'am, thanks a lot. Thanks Vibha Ganguly ji for coming and sharing all your thoughts. You have been really fighting relentlessly. आप continue कीजिए मैम fight and I'm sure आप successful होंगी। And fans are always looking towards people like you। चाहे वो बॉलीवुड में, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बहुत बॉलीवुड में बहुत सारे लोग सामने आए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सामने आए, एक्टिविस्ट, lawyers, journalists, fans, but key are politicians ma'am, please understand। key ultimately पॉलिटिशियंस होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तब चीज मूव होती है। तो हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक यू। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड whenever there is something more important, I'll call you again and please do oblige me by coming if there's something really very interesting and big. Thank you so much, man. Thanks a lot. You spared a lot of time. Thanks a lot.